بیدرا روڈ پہ موجود ہیں. یہاں پہ جو ملک بھر کی طرح جو ہے ہڑتال کا منظر ہے. یہاں پہ تمام شٹر جو ہیں وہ بند ہیں. شٹر ڈاؤن مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے انجمن تاجران کی جانب سے. ان کا کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ظالمانہ ٹیکس جو لاگو کیے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. ہم ہر چیز میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم پہ جو ہے GST ٹیکس مزید لگایا گیا ہے. اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت انجمن تاجران کے نمائندگان اور ہمارے ساتھ جو ہے انجمن تاجران جو ہے یہاں پہ کثیر تعداد میں موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں, جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. جی سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو 17% ٹیکس لاگو کیا ہے ہر شٹر پہ, مثلا ہر چھوٹے موٹے تاجر پہ, یہ ہمیں نامنظور ہے. کیونکہ یہ آلریڈی یہ جو دے رہے ہیں بجلی پہ یہ دے رہے ہیں ٹیکس, گیس پہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں, باقی اور جو پروڈکٹس وغیرہ لے کے آتے ہیں اس پہ دے رہے ہیں ٹیکس. تو اس میں انہوں نے یہ لگانا 17% ہمیں نہ قبول ہے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم یہ دیکھیں سارا مکمل شٹر ڈاؤن کیا. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, آگے دیکھ سکتے ہیں, مکمل مثلاً پوری مانسرا کا جو ہے نا شٹر ڈاؤن ہے. آپ انشاءاللہ 17% ہمیں نہیں ہے, ہم نہیں مانتے اس کا. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پورے پاکستان میں ٹریڈ یونین کی طرف سے جو شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دی گئی ہے, اس کی کچھ وجوہات اور کس وجہ سے لوگوں نے شٹر ڈاؤن کیا, یہ احوال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر اس گورنمنٹ کے آتے ہی سابقہ جو پروسیس چل رہا تھا FBR کے حوالے سے, اس پروسیس میں ہوا کچھ یوں کہ پاکستان کے اندر ایک مخصوص مافیا جو کہ ہمارے ملک کی اسمبلیوں میں بیٹھا ہوئے اور 60% سے 70% یہی لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ FBR کی جو پالیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مصنوعی مہنگائی کا سیلاب برپا کر دیا. دوسری چیز, گورنمنٹ کی طرف سے یوٹیلٹی بلز کی مد میں مختلف قسم کے ٹیکسز لگا دیے گئے جو کہ ڈائریکٹلی ہم بل میں اسٹیٹ آف پاکستان کو پے کرتے ہیں. اس کے بعد جو مخصوص بزنس مافیا جو کہ میرے انداز سے 70% پاکستان کی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ مصنوعی مہنگائی کا سیلاب برپا کر کے پورے پاکستان کے اندر اس وقت ایک شٹر ڈاؤن کی کال دے دی. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں نے اپنا شٹر بھی بند کیا ہوا ہے, لیکن میرے اپنے جو دل کے جذبات ہیں میں آپ سارے بھائیوں سے شیئر کروں گا اور حقیقت کو سامنے رکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے. تو آج ہم نے اس بات پر یہ تمام شٹر بند کر دیے. گزشتہ کل میں لاہور سے اپنی دکان کے لیے کپڑا لے کے آیا, تو تمام وہ بزنس مین جو لاہور کی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کاروباری نے اپنے دکان کی نام کا بل نہیں بنایا. کسی ایک ہول سیلر نے بھی اپنی دکان کے نام کا بل صرف اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس ٹیکس نیٹ سے بچنا چاہتے ہیں. یہی ٹیکس 16% FBR کو دیا جاتا تھا زرداری کی حکومت میں, یہی ٹیکس دوبارہ 17% نواز شریف کی حکومت میں, اور یہی 17% ٹیکس جس کے ٹیکس کے حوالے سے آج لوگ رو رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کیوں لیا جا رہا ہے, یہی 17% آج کی حکومت بھی لے رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی شہری ان تمام چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے. صرف اور صرف اگر نقصان ہو رہا ہے تو سب سے نیچے جو لوگ 67% پاکستانی جو لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, اور تقریباً 25% وہ پاکستانی جو متوسط طبقہ کہلاتے ہیں وہ مجبور ہیں. یہ 6 سے 7% مخصوص مافیا جو اسی ملک کی اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے, یہ خود انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ خود بزنس ٹائکون ہیں, یہ خود لینڈ مافیا ہیں, یہ خود وہ سب کچھ کر رہے ہیں, صرف متاثر ہو رہا ہے تو اس ملک کا ایک عام پاکستانی شہری متاثر ہو رہا ہے. وہ لوگ آج بھی محفوظ ہیں. آج کی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا کہ اس ٹیکس نیٹ کے اندر ان لوگوں جو 20 لاکھ پاکستانی اس ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں, ان لوگوں سے ٹیکس لینے کی جب پراپرلی بات کی پہلی حکومتوں میں میجارٹی یہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. آج کی حکومت نے انہیں اس ٹیکس نیٹ میں لایا, ابھی ٹیکس ریکورز نہیں ہوئے کہ ملک میں مہنگائی کا ایک عذاب برپا کر دیا گیا اسپیشل بزنس کمیونٹیز کے لیے.
स्पेशली ताजरों के लिए। बड़ी मार्केटों में आप जाओ, वो हकम वक्त को जो हमारा हुक्मरान है, ख्वाह वो नून है, पीटीआई है, जीटीआई है, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक रखता है, लेकिन वो हुक्मरान है पाकिस्तान का। इस मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम टैक्स के हवाले से नहीं बना हुआ है जिसको एक आम शहरी समझ सके। सबसे बड़ी बात कि मेजॉरिटी बिजनेसमैन कम्युनिटी, ताजर कम्युनिटी जितनी भी है, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली टैक्सेस देती है। सैकड़ों हजारों ताजरों के पास मानसरा शहर में एनटीएन है, लेकिन ये खौफजदा है कि इनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मालूमात ही नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान हमें पता नहीं इस अजाब में या चुंगल में क्यों फंसाना चाह रही है कि उनके पास इसके हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि सलीस उर्दू में इसके फॉर्म्स बनाए। 4.5 करोड़ पाकिस्तानी जो इनडायरेक्ट, 4.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं रियासत पाकिस्तान को। एक माचिस खरीदते हैं फिर भी टैक्स देते हैं, यूटिलिटी बिल्स में टैक्स देते हैं, अपनी जरूरत जिंदगी की कोई चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक रेडी वाले के पास एनटीएन, पाकिस्तान में रेडी वाले को भी एनटीएन मिलना चाहिए और इसे लेना चाहिए। इस बुनियाद पे लेना चाहिए कि पहले इसको शऊर दो इस चीज का कि ये टैक्स जो हम आपसे लेंगे, इस टैक्स के बदले हम आपको ये कुछ देंगे। सारी दुनिया में टैक्स लिया जाता है, सारी दुनिया में टैक्स लिया जाता है, वहां टैक्स के रिटर्न्स में लोगों को सहूलियात दी जाती हैं। इंग्लैंड की बात करूंगा, गोरों ने हम पे भी हुकूमत की है। यहाँ इंग्लैंड के अंदर एक वो शहरी, पाकिस्तानी शहरी जो 50 पाउंड पे दिन पे काम करने वाला है, वो साल का 6 लाख पाकिस्तानी, 7 लाख पाकिस्तानी टैक्स देता है। किस लिए देता है? उसको उस टैक्स के बदले सहूलियात मिलती हैं। सहूलियात क्या है कि हम सबसे ज्यादा परेशान है इस मुल्क में अपने बच्चों की तालीमी निजाम से कि 2 13 5 किस्म का तालीमी निजाम है। वहां इक्वलिटी बेसिस पे एक सुपीरियर एलीट क्लास के बच्चे को भी, एक गरीब के बच्चे को भी इक्वल एजुकेशन सिस्टम पे तालीम दी जाती है। हम एक अपने बच्चे के लिए कम से कम एक बच्चे का मंथली 2 लाख रुपया जो नॉर्मल स्कूल में उसका खर्चा है। अगर एक बंदे के 5 बच्चे हैं, 10 लाख रुपया वो सालाना अपने बच्चों की फीसेस पे करता है सिर्फ एक मंथ में। तो वो अगर रियासत पाकिस्तान इक्वलिटी बेसिस पे तमाम लोगों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉपर एक तर्ज की तालीम दे, तो खुदा की कसम आम शहरी भी सालाना 5 लाख रुपए टैक्स देने के लिए तैयार है कि उसे पता हो उसका टैक्स किधर जा रहा है, इस टैक्स के बदले उसको क्या सहूलियात मिलेंगी। यहाँ ये है कि मिडिल लेवल पे जो है एफटीआर, इनकम टैक्स, एक्साइज, ये सब दरमियान में ब्रोकर बैठे हुए हैं कि कौमें इस तरह नहीं बनती, जुल्म के साथ कौमें नहीं बनती। इस वक्त हकीकी तौर पे हर आम ताजर, हर कारोबारी, हर शख्स परेशान है। न इस मुल्क पे उसे सेहत की सहूलियात दस्तयाब है। अपनी अस्पतालों का हाल देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं, अपने मानसरा की हॉस्पिटल्स के हालात देख लो। न उसे बेहतरीन तालीम की कोई सहूलियात मुयसर है, उसको किसी चीज की भी जो बुनियादी हकूक है। आईन पाकिस्तान के अंदर कानून है आर्टिकल 38B2, वो ये कहता है कि रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है, रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को 5 किस्म की बाम सहूलियात मुयसर करे। सेहत, इंसाफ, तालीम, रोटी, कपड़ा, ये 5 रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। अगर ये 5 चीजें रियासत अपने शहरियों को देती है तो पाकिस्तान का हर शहरी जो कुछ साल में कमाएगा उसका 80% रियासत को देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ हमें सहूलतें कुछ भी नहीं मिलती हैं, इस बुनियाद पर मिलती हैं कि हम लोगों के अंदर शऊर नहीं। हम ये जो कुछ करते हैं अपने अपनी बुनियाद पे, अपने अपने मफादात के लिए करते हैं। आज ऊपर जिस माफिया ने इसकी काल दी, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये माफिया है, लेकिन गवर्नमेंट खुद मजबूर है, उन पे हाथ नहीं डाल सकती। हम ये कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान उन तमाम चोरों को, उन तमाम माज़ल अशराफिया और माफिया को खुदा की कसम पाकिस्तान के चौकों और चौराहों में उल्टा लटकाए, जिन्होंने इस कौम का माल खाया हुआ है। एक गरीब आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में, उसे सेहत का कोई मेयारी निजाम मुयसर नहीं, तो ये एलीट क्लास यूरोप अमेरिका में इलाज करवाती है। इन्हें हम पाकिस्तानियों से कोई सरोकार नहीं। ये मफादात की सियासत करते हैं, डिवाइड टू रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे को नवाजने की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी शहरी के लिए कोई कुछ भी नहीं करता सिवाय जुल्म के। अपने शहर में देख लो, हमारे थानों में जुल्म होते हैं, हमारी अदालतों में जुल्म होते हैं। ये अदालतों में बैठे हुए
जजों को नहीं पता कि नायब कोर्ट पैसे ले रहा है, मेरा रीडर पैसे ले रहा है, मेरा मुंशी पैसे ले रहा है, सब कुछ इस सारे सिस्टम को पता है। पता नहीं है तो पाकिस्तानी शहरियों को अपने हकूक का नहीं पता है। कोई पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान की बात करो, खुदारा जन्मों में से, बरादरियों में से, तसब की सियासत में से, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स में से निकलो। जहां मुल्क की बात हो वहां हम एक, जहां मसाइल की बात हो वहां हम एक। यहां सिर्फ मफादात की सियासत होती है। कितने आज 30,000 सीटर के लोग ये रोडों पे क्यों नहीं है? हमें तो यही नजर आता है कि मजबूरन एक आवाज पे इन्होंने दुकानें बंद कर दी। इस वक्त भी खुदा की कसम 80% लोगों को पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है, किस वजह से शटर डाउन कर रहे हैं, मसाइल क्या है। जिस वक्त तक मालूमात की रसाई नहीं होती उस वक्त तक अंधी तकलीफ में इंसान लगा रहता है। एक से दूसरे ने की, दूसरे से तीसरे ने की, ग्रुप बंदी बना ली। पीटीआई वाले एहतजाज नहीं करेंगे, नून वाले एहतजाज करेंगे। यार ऐसे कौमें नहीं बनती, ये कौमी मजाज नहीं है। हर शहरी को अपने बुनियादी हकूक का पता होना जरूरी है। हर शहरी अपने जायज मसाइल पे आवाज उठाए, हर फोरम पे जाके उठाए। और इस रवायती सियासत में से, जो रवायती सियासत इस मुल्क के अंदर हमारे सियासी नुमाइंदे सिर्फ 4, 5, 6 चीजों पे करते हैं, वो नलका है, वो नाली है, वो टूटी है, वो खंबा है, वो ट्रांसफार्मर है, वो पीसीसी है, या थाने की 107 की सियासत है। हमारे सियासतदान कौम बनाने के लिए सियासत नहीं करते हैं, सिर्फ इस चीज पे सियासत करते हैं कि एक तरफ लोगों को नवाज दो। ये सरदार यूसुफ का आदमी हो गया, ये साले मोहम्मद का आदमी हो गया। ये इन्होंने कभी पॉलिटिकल अवेयरनेस पे मानसरा शहर के नौजवानों को लेक्चर दिए कि कल इस मानसरा शहर का कोई आम शहरी भी उस जगह पे पहुंच सके जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं? नहीं, ये भाई को घर में भाई से लड़ा के, हजारों मसाले इस मानसरा शहर में, खुदा की कसम घर में भाई से भाई को लड़ाकर ये अपने मफादात की सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस एहतजाज का पस मंजर मैंने आपके सामने रखा। हमें अगर ये पता हो कि रियासत हमसे जो टैक्स लेगी, इस टैक्स के बदले एक आम पाकिस्तानी शहरी को क्या मिलेगा, आज तक क्या मिला है कि हमें अपनी बुनियादी जरूरियात तक कोई असर नहीं। आज भी 2019 पे गली मालों में खुदा की कसम एक नलके पे पानी के एक कनेक्शन पे पॉलिटिक्स हो रही है हर गली मोहल्ले में। और 30 साल से ये अशराफिया हमारे ऊपर सिर्फ इन बातों पे सियासत कर रहा है कि मैं इस दफा MPA बन जाऊं, मैं इस दफा MNA बन जाऊं, तुम्हारी गली पक्की हो जाएगी। और मैं लानत भेजता हूं इस सियासत पे कि कौम बनाने की बात न की जाए, कौम बनाने की बात न की जाए। बात की जाए तो नलका लगाएंगे, नाली बनाएंगे, टूटी लगाएंगे। लानत 100 दफा ऐसी पॉलिटिक्स पे। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा आका दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो मेहनत की वो कौम बनाने पे मेहनत की, उसके बाद सब कुछ बना। उमर पाक के दौर के इदारे या सिस्टम आज चल रहा है, लेकिन वो उस हाथ में है जो कुफरिया ताकतों का छोड़ा हुआ लॉर्ड मैकाले और बल्कि विक्टोरिया का कानून है। हमारे लिए सुप्रीम लॉ कुरान का कानून है, सुपरमेसी अल्लाह पाक की जात को हासिल है। हर मुसलमान ने, हर पाकिस्तानी शहरी ने अपने दिल में इस बात को रखना है। आज ऐद करो, हम 10 नहीं 10,000 लोग खड़े हैं। अगर हर शख्स इस बात को समझ जाए कि ये नौजवान जो ये बातें कर रहा है इसके मफादात की बातें, तो तू करके जाओ। अगर यही कुछ हक है तो खुदा की कसम हर शख्स से ये बात शेयर करो। कोई बड़ा नहीं, कोई सियासतदान बड़ा नहीं, इनके गलों में आप मालें डालते हो, सीनों से लगाते हो। जरा ये हमारे नुमाइंदे हैं, किस चीज के नुमाइंदे हैं? इनके बच्चे हाई-फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोग इस शहर के ऐसे हैं जिनके बच्चों को तालीम मुयसर नहीं, तन पे पहनने का लिबास मुयसर नहीं। वो बच्चे भी तो कौम के बच्चे हैं। कभी इन्होंने उस तरफ देखा है? हमारी DHQ हॉस्पिटल मानसेरा जिसके लिए किंग अब्दुल्ला सऊदी गवर्नमेंट ने फंड दिया, इसका हाल देखो। यहाँ क्या मिल रहा है मानसेरा शहर के किसी शहरी को? किसी को कुछ मिल रहा है इस हॉस्पिटल से? तो खुदारा हर पाकिस्तानी ये कहे कि मैं इस मुल्क का शहरी, इस मुल्क का मालिक हूं, मैं ये मुल्क हमारा है। ये अल्लाह पाक ने खत्म होने के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान दुनिया के 157 ममालिक में से वो मुल्क है कि जो अल्लाह पाक ने किसी मकसद के लिए बनाया है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है।
दुनिया का नक्शा चीर फाड़ के सब दिलाली परचम जिस मुल्क का निशान है उसके लिए एक दुनिया के नक्शे को चीर फाड़ के उसमें एक पाकिस्तान ला के रख दिया अल्लाह पाक ने। तो इसमें अल्लाह पाक ने इस मुल्क से बहुत बड़ा काम लेना है। नजरिए की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क, 47 में लाखों कुर्बानियों के बाद बनने वाला ये मुल्क, ये कोई आम मुल्क नहीं है। हमारा एहतजाज मुल्क में अनारकी फैलाना नहीं है। हमारा एहतजाज सिर्फ इस बात पे कि खुदारा कोई ऐसी वाज़ेह और जामे पॉलिसी लाओ कि जिसको इस मुल्क का एक आम शहरी समझ सके। बाकी ऊपर जो कुछ चल रहा है आपकी जातियात की जंग है। 1% अशराफिया और माफिया, इनके मफादात की जंग है। ये टीवियों पर बैठते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, भौंकते हैं। ये असम्बलियों में बैठते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, भौंकते हैं। ये जिस फोरम पे बैठते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ भौंकते हैं। किसी पाकिस्तानी शहरी ने ये सुना कि ये उसके गरीब के मफाद की बात करें? किसी एक पाकिस्तानी शहरी ने सुना कि असम्बलियों में बैठ के जो ये कानून साजियां करते हैं उस हवाले से आपके शहरों में, आपके गली महलों में आपको कुछ मफाद नजर आया हो? कुछ भी नहीं है। इनके मफादात की जंग है। जितने नौजवान हम जहाँ खड़े हैं, हम ये तय करें कि ये मुल्क है तो हम है, ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। हम जान के जिएंगे, हर बात को जान के जिएंगे। किसी बात के लिए रोड पर निकलेंगे तो हमारे पास मालूमात होनी चाहिए। ये रवायती सियासत करने वाले जो डुगडुगी बजाते हैं, अवाम को इकट्ठा करते हैं, अपना मकसद बयान करते हैं और चले जाते हैं। हम इस बात पे वोट दे देते हैं कि बहुत अच्छा है, इसको हम वोट देंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है TMA से काम किस तरह लेना है। किसी पाकिस्तानी के शहरी को नहीं पता है। थाने में जाना है तो बेहसियत है पाकिस्तानी शहरी कैसे जाना है। वफदा डिपार्टमेंट के दफ्तर जाना है तो खुद जाना है, पाकिस्तानी शहरी है। FBR के पास जाना है तो खुद जाना है। यहाँ क्या है, यहाँ मिडल मैन पॉलिटिक्स चल रही है यार। कोई शहरी किसी को अपने हकूक का नहीं पता। बेहंगम सा हजूम है। वो मिसाल देते हैं, एक ऐसा हजूम है खुदा की कसम कि जिसकी कोई सिमती नहीं। जो 4 बातें करता है उसके पीछे ये ठीक है। इस वक्त बात इमरान खान की, नवाज शरीफ या जरदारी की नहीं है। इस वक्त बात इस मुल्क की है। मैंने पहले कहा कि ये मुल्क है तो हम हैं। हमने किसी बात में भी नहीं आना। हम इस बात पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन तमाम चोरों चकों को, वो आपकी पार्टी के, आपकी मुखालिफ किसी पार्टी के या पहले से किसी पार्टी के, इन तमाम चोरों चकों को उल्टा लटकाओ। इन तमाम चोरों चकों को उल्टा लटकाओ। आप कहते हो करप्शन खत्म हो गई। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि आप आओ हजारा डिवीजन में, आपको मैं पाकिस्तान में जहां एक कदम रखोगे, हर कदम के नीचे, खुदा की कसम, हर कदम के नीचे करप्शन है। आप जो करप्शन खत्म करने की बात करते हो, हम इसको मानते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को भी तो देखो। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? हर चप्पे चप्पे पे करप्शन है। ये रोड तोड़ा जा रहा है, ये रोड तोड़ा जा रहा है। इस रोड के लिए 13.5 लाख रुपया एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को दिया। ये रोड तोड़वाया। ये वतीन टेलीकॉम कंपनी तोड़ रही है। ये 3 महीने बाद बनेगा। ये हाल है इस मुल्क के इदारों का। CNW एक इदारा बना हुआ है, उसका हाल ये कि 13 लाख रुपया पाकिस्तानी शहरियों का यहाँ लगेगा। ये हमें नहीं पता कब लगेगा। ऐसे इदारे चल रहे हैं। कमीशन माफिया पे इदारे चल रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में परसेंटेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में परसेंटेज है, NHA के कॉन्ट्रैक्टर्स परसेंटेज लेते हैं, CNW के कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं। इनके जितने जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनकी परसेंटेजेस हैं। जो लोग बल्दियात से रिलेटेड है, दरार लाला खड़े हैं, इनको पता है इनकी परसेंटेजेस हैं। SDO भी परसेंटेज लेता है, TMO भी परसेंटेज लेता है, TOI भी परसेंटेज लेता है, एक्शन NHA, एक्शन CNW सब परसेंटेज ले रहे हैं और परसेंटेजेस पे पाकिस्तान चल रहा है। अपने अपने मफादात ले रहे हैं। एक आम शहरी को जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है। तो पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान को अगर बचाना है तो हमने हर पार्टी, हर जनता कौमियत से बालातर होके सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। और जहां पाकिस्तान की बात करनी है वहां हमें दूसरी कोई बात भी कबूल नहीं। हमारी कोई पार्टी नहीं। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लिमिटेड कंपनीज है। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
लिमिटेड कंपनीज है, हम इन लिमिटेड कंपनीज का हिस्सा नहीं है और हम किसी अड़ले तड़ले के नारे लगाने वाले भी नहीं है। हम सच्चे पक्के पाकिस्तानी है और ये सब दलाली परचम खुदा की कसम हमारी शान है। और जिस वक्त इस वतन को कुफर के खिलाफ वक्त आया तो दुनिया के अंदर ये वाहिद कौम है पाकिस्तानी कौम। तवन इस्लामी ममालिक का झंडा इंशाअल्लाह इस कौम के हाथों में होगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि हम हो तो हम फ्रंट लाइन में हो, हम ना हो तो हमारे बच्चे एले हक वालों के साथ फ्रंट लाइन पे आलम कुफर के खिलाफ खड़े हो। आखिर मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिस तरह मेरे दूसरे ताजिर भाइयों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, आज हमें अंजुमन ताजरान की तरफ से एक कॉल मिली है कि हड़ताल करनी है, तो हमने अपने शटर डाउन कर दिए। आप देख सकते हैं, आपके कैमरामैन ने नोट किया है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद है। ये हड़ताल जो है ये इसका कोई सियासी मकसद नहीं है हमारा, न ही ये किसी सियासी पार्टी के कहने पे हम लोगों ने की है। ये हड़ताल सिर्फ़ और सिर्फ ताजिर बरादरी के कहने पे की गई है और इसका मकसद है कि ये जो ज़ालमाना टैक्सेस हम पे लगाए गए हैं इनके बारे में ये हड़ताल है। क्योंकि हम पहले भी हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं, हम बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए खुदारा हुकूमत को चाहिए कि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनका ज़रिया माश सिर्फ एक छोटी छोटी दुकानें हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। हम टैक्स देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी देते रहे हैं, हम बाद में भी देंगे। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें पता है कि टैक्स दिए बगैर गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, कोई मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन हमें इसका रिटर्न भी चाहिए। हमें हमारे हॉस्पिटल्स में हमें सहूलियात चाहिए। हमारे देखें यहाँ पे रोड की हालत देखें, बिजली की तारें जो है देखें रोड क्रॉस करके ऊपर लटकी हुई हैं, आए दिन हादसात होते हैं। रोड की हालत देखें, बारिशें होती हैं तो पैदल चलना तो दरकिनार, यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती हैं। तो इसलिए हम लोग ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स देंगे, लेकिन हमें टैक्स के साथ फिर हमें सहूलियात भी दी जाएँ। हमारे रोडों को, हमारी गलियों को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे स्कूलों को ये पैसा जो है ये वापस हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। ये करप्शन की नज़र नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है। और महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। ये जो टैक्स आप ले रहे हैं इस पे आप सब्सिडी दें, बाकी चीज़ों पे। हमारा सिर्फ ये एक मुतालबा है और इंशाअल्लाह हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम मुहब्बे वतन शहरी हैं। लेकिन करप्शन को ख़त्म किया जाए, टैक्स का जो पैसा आप कलेक्ट करते हैं उसको पाकिस्तानी अवाम पे लगाना चाहिए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मानसरा की जो आवाम है इनका यही कहना है कि हम गवर्नमेंट के साथ हर तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें पहले सब्सिडी फराम करे, हमारे जो मसाइल हैं इनका हल तलाश करे और हमें ये हल मुहैया किया जाए। इसके बाद गवर्नमेंट 80% टैक्स लगाना चाहे हम वो भी देने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारा टैक्स वसूल किया जा रहा है ये ज़ालमाना टैक्स है, ये करप्शन की नज़र हो रहा है। हम ये किसी सूरत जो है टैक्स बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सहूलियात दे तो हम हर किस्म के तावन के लिए तैयार हैं। जी।